وعلیکم 5 نیوز کے ساتھ میں ہوں وریشہ خان۔ خبر ہے کہ گلگت بلتستان ضلع خاتی کھاٹا میں آسمانی بجلی گرنے کے بعد اچانک آنے والے سیلابی ریلے نے شدید تباہی مچا دی ہے۔ سطح پر بلند ہونے سے سڑک دریا برباد ہو گئی ہے اور علاقہ مکمل طور پر علاقوں سے کٹ گیا ہے۔ زمینی رابطہ منقطع ہونے کے باعث مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں البرٹ مہک کی اس رپورٹ میں۔ ضلع غزر کے تحصیل گپس کے علاقے خلطی کھٹم میں حالیہ بارشوں اور آسمانی بجلی گرنے کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں غزر دریا نے اپنا قدرتی راستہ چھوڑ کر غزر روڈ کی طرف بہنا شروع کر دیا، جس کے باعث سڑک کا ایک بڑا حصہ متاثر ہوا اور غزر روڈ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہو گئی۔ اس صورتحال کے نتیجے میں پھنڈر سمیت کئی دیہاتی علاقوں کا گپس سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ سیلاب سے کئی مکانات، زرعی زمینیں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا، جبکہ بجلی اور مواصلاتی نظام بھی شدید متاثر ہوا۔ فون سروس میں خلل کے باعث لوگوں کو ایمرجنسی صورتحال میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ اگرچہ مقامی آبادی محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہو گئی، روزمرہ ضروریات، خوراک اور ادویات کی قلت محسوس کی جا رہی ہے۔ اگرچہ انتظامیہ کی جانب سے ایک متبادل راستہ یعنی قدیمی راستے کو جزوی طور پر کھول دیا گیا ہے، مگر وہ راستہ انتہائی دشوار گزار ہے جو پیدل نقل و حرکت کے لیے بھی آسان نہیں۔ ایمرجنسی کی صورت میں اس راستے سے گاڑیوں کا گزرنا یا مقامی افراد کا اس راستے کو اپنانا ایک پیچیدہ اور مشکل عمل ہے۔ یہ راستہ وقتی طور پر صرف ہنگامی حالات میں نقل و حرکت کے لیے اختیار کیا جا رہا ہے، تاہم اس کی دشواری کے باعث یہ کوئی مستقل یا آسان حل نہیں سمجھا جا رہا۔ تو اس سلسلے میں کل یہ رپورٹنگ تھی کہ وہاں پہ سارے ایکسکیویٹرز پہنچ گئے، مشینری پہنچ گئی اور روڈ پہ کام ہو رہا ہے۔ تو آج ہم یہاں پر آئے تو 3 مشینری کبھی یہاں پہ کھڑی ہیں لیکن وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ نہیں لگ رہا ہے کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہے۔ ضلع انتظامیہ نے ریسکیو ٹیموں کو روانہ کر دیا ہے اور علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، تاہم سڑک کی بندش کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے صوبائی اور وفاقی حکومت سے فوری امداد کی درخواست کی ہے تاکہ متاثرہ علاقے میں ریلیف اور بحالی کے کاموں میں تیزی لائی جا سکے۔ البر مہک، 5 نیوز، غزر۔ صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ حکومت سندھ مارکہ حق کے عنوان سے جشن آزادی بھرپور انداز میں منا رہی ہے۔ حیدرآباد سے گرینڈ میوزیکل ایونٹ سجایا جائے گا۔ حیدرآباد سے بیورو چیف ظاہر علی کی رپورٹ دیکھیے۔ صوبائی وزیر ثقافت و سیاحت سید ذوالفقار علی شاہ کی زیر صدارت شہباز ہال حیدرآباد میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس سے صوبائی وزیر نے کہا کہ بھارت کی جانب سے جارحیت کے جواب میں پاکستان نے جو جواب دیا ہے اس سے عوام کا سر فخر سے بلند ہوا، اس لیے ہم مل کر جشن آزادی کے ساتھ ساتھ مارکہ حق بھی انتہائی جوش و خروش اور شاندار طریقے سے منائیں گے۔ ہم ایک بہت بڑا میوزیکل میگا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کے نامور جو شاید کبھی حیدرآباد میں انہوں نے نہیں پرفارم کیا ہوگا، جہاں پہ راحت فتح علی خان، کیفے خلیل اور بہت سارے ینگ اسٹار گروپ، کافی سارے بہت سارے یہاں پہ جو ہے وہ پرفارم کریں گے۔ میں سب کو یہ جو جشن آزادی ہے اس کی اس پروگرام کی حیدرآباد کی دعوت دیتا ہوں۔ 8 تاریخ کو ہمارا پروگرام حیدرآباد میں ہے، 10 کو میونسپل اسٹیڈیم سکھر میں ہے اور 13 کی رات گوش وہ ہوگا کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں۔ اور یہ تینوں پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے بہت بڑے پروگرام ہوں گے۔ گرینڈ میوزیکل ایونٹ میں ملک میں معروف گلوکار اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے، جبکہ حکومت سندھ کی جانب سے 10 اگست کو سکھر اور 13 اگست کو کراچی میں بھی اسی طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین سہیل احمد کے ساتھ ظاہر علی، حیدرآباد۔ میرپور خاص میئر میونسپل کارپوریشن عبدالرؤف غوری کی زیر صدارت یوم آزادی پاکستان مارکہ حق کے عنوان سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر میئر عبدالرؤف غوری نے کہا کہ جشن آزادی کے حب الوطنی سرشار پروگرام ہمارے اپنے پروگرام ہیں۔ میئر نے کہا کہ جشن آزادی کی مرکزی تقریب گاما اسٹیڈیم میں منعقد کی جائے گی تاکہ پورا شہر اپنے وطن عزیز کی آزادی کا دن جوش و خروش سے منا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 1 اگست سے 14 اگست تک جشن آزادی کے مختلف پروگرامز منعقد کیے جائیں گے، جس میں 13 اگست کو میوزیکل شو اور مینا بازار بھی شامل ہے۔ اس ضمن سب کمیٹیاں تشکیل دیں گی۔ میئر عبدالرؤف غوری نے اعلان کیا کہ جشن آزادی کے سلسلے میں اہم مقامات، اہم شاہراہوں، مارکیٹوں اور گلی محلوں کو خوبصورت سجانے اور چراغاں کرنے والوں کو انعامات دیے جائیں گے۔ اجلاس میں ڈپٹی میئر سمیرہ بلوچ اور دیگر افسران نے شرکت کی۔
फैसला आबाद में खवातीन के लिए रोजमर्रा सफर एक मुश्किल इम्तिहान बन चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी और गैर महफूज माहौल ने उनका जीना दो भर कर दिया है। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद में खवातीन का रोजमर्रा का सफर एक मुसलसल आजमाइश बन चुका है। दफातर, अस्पतालों, तालीमी अदारों और बाजारों का सफर अक्सर गैर महफूज और तकलीफ देह होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी ने खवातीन को मजबूर कर दिया है कि वो या तो निजी सवारी पर इन्हसार करें या धक्के बर्दाश्त करें। बसों, वैगनों और रिक्शों में खवातीन के लिए मखसूस नशिस्तें या अलहदा सहूलतें ना होने के बराबर हैं। अक्सर उन्हें मर्दों के हजूम में सफर करना पड़ता है, जहां हरासानी और बदतमीजी जैसे वाकयात आम हो चुके हैं। चिंची रिक्शों में जगह के लिए बहस, ताखीर से मंजिल तक पहुंचना और गैर महफूज सफरी माहौल रोज का मामूल बन चुका है। ये सूरत हाल न सिर्फ जहनी दबाव का बायस है, बल्कि खवातीन की तालीमी और माशी सरगर्मियों में भी रुकावट बन रही है। दूसरी तरफ लाहौर और रावलपिंडी में खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस सर्विस कामयाबी से जारी है। मुश्किलात हमें बहुत होती हैं जब हम चिंची पे आते हैं। जेंट्स भी कई बार साथ बैठे होते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है सफ़र के दौरान हमें ना। लाहौर इस्लामाबाद में पिंक बस है, तो इसी तरह हमारे फैसलाबाद में भी ये सहूलत मुयसर होनी चाहिए, तो उनमें सफ़र इजीली किया जाता है। हमारी वज़ीर आला से यही मुतालबा है कि पिंक बस इधर हमारे फैसलाबाद में भी की जाए। फैसलाबाद की खवातीन भी चाहती हैं कि उन्हें वही सहूलियात मैसर हो जो दीगर बड़े शहरों में फराहम की जा रही हैं। अवामी मुतालबा है कि फौरी तौर पर पिंक बस सर्विस का आगाज करके खवातीन के सफर को बाइज्जत, महफूज और आसान बनाया जाए। खवातीन को सफर के दौरान तकलीफ, परेशानी और गैर महफूज माहौल से बचाने के लिए हुकूमत को काबिल भरोसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुरू करने के लिए फौरी इक़दामात करने की जरूरत है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। सूबाई वजीर साहब डॉक्टर अजरा फजल पेचोह ने थैलेसीमिया केयर सेंटर नवाबशाह में थैलेसीमिया के हवाले से जदीद मशीनरी और नादरा ऑफिस नवाबशाह में थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए कायम डेस्क का इफ्तिताह कर दिया है। नवाबशाह में इफ्तिताह के मौके पर सूबाई वजीर साहब डॉक्टर अजरा फजल पेचोह ने कहा कि सिंध असम्बली में थैलेसीमिया की रोकथाम से मुतालिक आगाही प्रोग्राम के लिए बिल पेश किया जाएगा। थैलेसीमिया केयर सेंटर नवाबशाह को मजीद फॉल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि सेंटर में रजिस्टर्ड 2600 से ज्यादा बच्चों को खून, अद्वियात और दीगर तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की जा सकें। सूबाई वजीर डॉक्टर अजरा फजल पेचोह ने थैलेसीमिया सेंटर के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया, जहां थैलेसीमिया पेशेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद सादिक सियाल और ज्वाइंट सेक्रेटरी गुलाम नबी चन्ना ने उन्हें ब्रीफिंग दी। इस मौके पर डीजी नादरा आमिर अली खान, डिप्टी डायरेक्टर समीना, सेक्रेटरी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी डॉक्टर दरनाज जमाल, जोनल इंचार्ज नादरा रफीक बलर, डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद अब्दुल समद निजामानी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। हैदराबाद शहर में मार्का हक जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिले का आगाज हो गया है। MKM पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम आज़ादी वॉक निकाली गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने रैली में शिरकत की। हैदराबाद से जबरान खान की रिपोर्ट देखिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के ज़ेरे एहतमाम मार्का हक जश्न आज़ादी के सिलसिले में जिमखाना गुल सेंटर से हैदर चौक तक वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमाओं ने वॉक के शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए हमारे अकाबरीन और अफवाज पाकिस्तान के किरदार एक मिसाली और काबिल फ़ख्र। मार्का हक यौम आज़ादी का मकसद सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये मैसेज देना है कि हम अपने पाकिस्तान के साथ खड़े और पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े, पाकिस्तान को मजबूत खड़े करने के लिए खड़े। और महाजिर पाकिस्तान का दूसरा नाम है, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें। इस दफ़ा जो मार्का हक की वजह से कि पाकिस्तान का दिफा किया, पाकिस्तान की आज़ादी का दिफा किया, तमाम कौम मिलकर इस 14 अगस्त को बड़े उसके शान शान तरीके से मना रही है। इसी तरीके से हर शहरों से MKM पाकिस्तान की रैली निकाली जा रही है और ये रिवायत माजी की बरकरार है। इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मंथ इसी तरीके से रैलियां निकलेंगी और मैं तमाम
पाकिस्तान में बसने वालों को सबको दिल की गहराइयों से इस रैली की और 14 अगस्त की बहुत बहुत मुबारकबाद। वॉक में सिंध तंजीमी कमेटी के इंचार्ज सलीम रज़ाक व अरकान, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज जफर अहमद सिद्दीकी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी हक परस अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, सैयद वसीम हुसैन, प्रोफेसर अब्दुल अलीम खानजादा, राशिद खान एडवोकेट, इंजीनियर साबिर हुसैन कायम खानी, नासिर हुसैन कुरैशी और मुकामी जिम्मेदार और कारकुनान के अलावा हैदराबाद के शहर के मुअज़्ज़िज़ीन और बिजनेस कम्युनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की। जिब्रान खान, 5 न्यूज़, हैदराबाद। रुख करेंगे कसूर का, जहां कसूर में पैरा फोर्स ने गिरा फरोशों और कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान अशिया ज़रूरिया महंगे दामों फरोख करने वाले अनासर के खिलाफ भरपूर एक्शन लेते हुए लाखों रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। तजावुज़ात माफिया और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर से सज्जाद अंसारी से। जी सज्जाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह कसूर में भी जो है वो तजावज़ात के खिलाफ, गरा फरोशी के खिलाफ, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी है। पीरा फोर्स इस वक्त मैदान में आ चुकी है और यहाँ पर जो तजावज़ात हैं और गरा फरोशी है, मुनाफाखोर हैं, उनके खिलाफ जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही है। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं पीरा फोर्स कसूर के SDEPO, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी सर, बताइएगा अभी तक कितना फ़ाइन लोगों को किया गया, तो मज़ीद क्या पैगाम आप इवाम को देना चाहेंगे इस हवाले? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमें पीरा फोर्स को इफ्तिताह के बाद 1 हफ़्ता हुआ है, हमने काम शुरू किया है। तो इब्तदा में आते ही हमने तजावज़ात रिमूव कराई, तकरीबन कोई 2.5 अरब रुपए की मालियत का रकबा वागुज़ार करवाया, जिसमें ज़िले इंसामिया की भरपूर मुआवनत थी हमारे साथ। और उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर हम प्राइस चेकिंग करते हैं। तकरीबन 1 हफ़्ते में मैंने 10.5 लाख रुपया गिरा फरोशों के ख़िलाफ़ फ़ाइन आयद किया है। और आवाम के लिए, दुकानदारों के लिए, सब के लिए यही पैगाम है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी यही चाहती है कि लोगों को बुनियादी सहूलतें जो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट्स हैं उन पर फराहम की जाएँ। तो उसी पे हम एक्शन ले रहे हैं। जो बंदा रेट लिस्ट के ख़िलाफ़ चल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जो मेन बाज़ार हैं, मेन जो दुकानें हैं, उन पे रेट कंट्रोल करने में आप काफ़ी हद तक कामयाबी हो गए। गली मोहल्लों की अगर बात की जाए तो गली मोहल्लों में जो चीज़ है वो बाज़ार की निस्बत वहाँ पर मुनाफाखोरी बहुत ज़्यादा। इस हवाले से आप क्या कहें? इस सिलसिले में भी हमने लाया अमल तैयार कर लिया है जी। इंशाल्लाह जल्दी आपको अच्छी खबरें देंगे। उसके लिए हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि हम किस तरह से अंदर तक एक्सेस करें और वहाँ तक पहुँच के लोगों को रिलीफ दे सके। इंशाल्लाह जल्दी आपको अच्छी खबर। जी, जैसे आपने बात सुनी है गजनफर नवीद की, SDEPO कसूर हैं, उनका यही कहना है कि मुनाफाखोरी और तजावज़ात किसी सूरत पर जो है ना वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गलियों मोहल्लों में भी जो मुनाफाखोरी की जा रही है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। सखर में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर काबू न पाया जा सका। मुबैना भत्ताखोरी पर एयरपोर्ट थाने के हुदूद में वाक़या नई पुल बिराज के करीब नामालूम मुसल्लफ़ अफराद ने मारूफ प्रोफेसर डॉक्टर करपाल दास की गाड़ी पर अचानक फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान डॉक्टर करपाल दास तो महफूज रहे, ताहम उनके साथ गाड़ी में मौजूद टेक्नीशियन वजीर बोहड़ को सर में गोली लगने से मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। पुलिस इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंची और मकतूल टेक्नीशियन वजीर बोहड़ की लाश को सिविल अस्पताल सखर मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग के वाक़े के बाद डॉक्टर करपाल दास को शदीद जहनी दबाव के बायस दिल का दौरा पड़ा, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर करपाल दास सखर से खैरपुर जा रहे थे जब रास्ते में मोटरसाइकिल सवार नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर हमला किया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात जारी हैं और अमलावरों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। चिन्योट में दरिया चन्नाब के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया चन्नाब के मकाम 1 लाख से ज्यादा क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मजीद जान लेते हैं पुल दरिया चन्नाब पर मौजूद अपने नुमाइंदे मियां मुनव्वर हुसैन से। जी मियां मुनव्वर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चिन्योट में दरिया चन्नाब के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। दरिया चन्नाब पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक तक जा पहुंचा है, जो कि निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया चिन्योट की जानिब से तमाम इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की टीमें नशेबी इलाकों में जाकर मसाजिद में ऐलानात करवा रही हैं और लोगों को माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट सफ़ीउल्लाह गोंदल की जानिब से दरिया चनाब के मकाम पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है।
जबकि दरिया चनाब में नहाने और कश्ती रानी पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। रेस्क्यू 1122 के एहलकार किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। जी। खैरपुर मीरस में मार्का हक और यौम आज़ादी के मौके पर जिला इंतजामिया की जानिब से यकजहती मार्च का इनेकाद किया गया। मार्च की क़यादत डिप्टी कमिश्नर फयाज हुसैन राहूजो और SSP हसन सरदार नियाजी ने की है। खैरपुर मीरस में जिला इंतजामिया ने मार्का हक और जश्न आज़ादी की मुनासबत से यकजहती मार्च का इनेकाद किया। मार्च में 60 से ज़ायद सरकारी और गैर सरकारी इदारों के अफसरान, मुलाजमीन और शहरियों ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए। डिप्टी कमिश्नर फयाज हुसैन राहूजो ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की आज़ादी और सलामती हमारे इदारों की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है और हम हर महाज पर उनके शाना बशाना खड़े हैं। SSP हसन सरदार नियाजी ने कहा कि पाक फौज नाकाबिल तस्खीर है और हम रियासती इदारों के साथ पहले भी थे और आइंदा भी रहेंगे, जिन्होंने इत्तेहाद, अमन और कौमी यकजहती का पैगाम दिया। सूफी शायर और बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात में 7 रोज रह गए हैं, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अब तक इंतजामात मुकम्मल नहीं किए गए। मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन के लिए कोई भी सहूलत का बंदोबस्त नहीं किया गया। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हाला से नुमाइंदा 5 न्यूज़ अली रजा से। जी अली रजा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के शहर बेडशाह में, जहाँ आज हम बात करेंगे हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का 282 उर्स मुबारक की तैयारियां हैं जो अब तक मुकम्मल नहीं की गई हैं। क्या वजहात है, क्या इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए जानते हैं इनसे कि इसी हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताएं हमें, क्या इंतजाम किए गए इंतजामिया की जानिब से? देखें, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई सिंध के नहीं बल्कि बरे सगीर के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग व शायर हैं। उनका उर्स जो है कुछ ही रोज़ में यहाँ पर शुरू होगा और उसकी 282वां उर्स से तकरीबात शुरू होती हैं। बड़े पैमाने पर मुल्क भर से ज़ायरीन आते हैं यहाँ पर और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई अपने रूहानी रहबर के हुज़ूर हाज़िरियाँ देते हैं। मगर हमने यहाँ पर शहर में देखा है कि उन लाखों ज़ायरीन के लिए किसी किस्म की सहूलियात यहाँ पर जो है फ़राम नहीं की जा रही। महकमा और सकाफ़त की जानिब से यहाँ पर मुख्तलिफ़ मुकामात को जो है सहूलियात फ़राम करने और एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं, मगर वहाँ भी हमें किसी किस्म के इंतजाम नहीं देखे जा रहे हैं, हम नहीं देख रहे। इसके अलावा महकमा औकाफ जो दरगाह शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को कवर करती हैं, वहाँ पर भी ज़ायरीन के लिए किसी किस्म की सहूलियात हमें नज़र नहीं आ रही जो ज़ायरीन के लिए की जाएँ या की जाएंगी। हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध से कि इन महकमों के अफसरान को जो है पाबंद किया जाए ताकि वो ज़ायरीन, लाखों आने वाले ज़ायरीन की सहूलियात को जो है वो उनके इंतजाम कर सकें। जी आपने यहाँ मौजूद शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि महकमा सकाफ़त, महकमा औकाफ और मुतल्लिका महकमों की जानिब से अब तक हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 282 उर्स मुबारक की तकरीबात जो है तैयारियाँ हैं जो मुकम्मल नहीं की गई है। इन्होंने मुतालबा किया है हुकूमत सिंध से कि बराए करम यहाँ पर जो है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 282 उर्स मुबारक की तकरीबात में मुल्क भर से आने वाले ज़ायरीन के लिए सहूलियात जो है फ़राम की जाएँ ताकि जो आने वाले ज़ायरीन के लिए कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 14 अगस्त को जोश व जज्बे के साथ मनाने के ऐलान पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दादू की जानिब से रैली निकाली गई है। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, व्यापारियों, सिविल सोसाइटी के रहनुमा और तलबा की शिरकत का मार्का हक पाक फौज की फतह पर जवानों को खराज तहसीन पेश किया। मजीद तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श की रिपोर्ट में देखिए। 14 अगस्त आज़ादी पाकिस्तान के दिन को जोश और जज्बे के साथ मनाने के लिए मुल्क भर की तरह दादू में भी तैयारियां जोर शोर से जारी है। पाकिस्तान के 78वीं जश्न आज़ादी पाक फौज के ऑपरेशन बुनियाद मंसूब में कामयाबी पर जिला इंतजामिया की जानिब से जश्न आज़ादी रैली का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर दादू के दफ्तर से प्रेस क्लब तक किया गया। रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान समेत तलबा, व्यापारियों और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देने वाले सियासी रहनुमाओं और पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया। जश्न आज़ादी के सिलसिले में आज हमने DC साहब की क़यादत में यहाँ DC हाउस से प्रेस क्लब तो रैली निकाली है। हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान की आवाम को अवेयरनेस देना है कि पाकिस्तान एक मुख्तियार इदारा है और हमारे बहादुर नौजवानों ने और बहादुर लीडरों ने जो काम किया है पाकिस्तान के लिए वो काबिल तारीफ़ है। हमने रैली निकाली है, 14 अगस्त की तैयारियां हैं। बहुत हमें अच्छा लगा कि आज हमारा पाकिस्तान का अगस्त का पहला दिन शुरू हो चुका है। जो हमारा जो मुल्क आज़ाद हुआ है उसके हवाले से हम खुशी का दिन मना रहे हैं और 1 अगस्त है तो इसी इंशाल्लाह 14 दिन ही हम ऐसे जश्न मनाते रहेंगे।
आरिफवाला के कस्बा कबूला में हुकूमत पंजाब और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मॉडल रेहड़ी बाजार कायम कर दिया गया है। रेहड़ी बाजार का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने समाजी और कारोबारी शख्सियत ताहिर इकबाल जट के हमरा किया। आरिफवाला से आमिर तूर की ये रिपोर्ट देखिए। आरिफवाला के इलाके कबूला में रेहड़ी बाजार कायम कर दिया गया। इस मनसूबे का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने मशहूर समाजी और कारोबारी शख्सियत चौधरी ताहिर इकबाल जट के हमरा किया। रेहड़ी बाजार का मनसूबा हुकूमत पंजाब और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुकम्मल किया गया, जिसका मकसद वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक शहरियों को साफ सुथरा और तजावज़ात से पाक माहौल फराहम करना है। ये ब्यूटिफिकेशन का और पब्लिक फैसिलिटेशन का जो सफ़र है वो हम जारी रखेंगे और इसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने भी फंड्स दिए और चौधरी ताहिर इकबाल साहब ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है एम्ड एट द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक, लोगों की फलाह के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जगह जो है ये खूबसूरत हो गई पहले से। हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से जो है वो पेवर्स लगा दिए, चौधरी साहब ने जो है हमें ये कार्ड्स जो हैं वो दे दी अपने इलाके के लोगों को। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा के मुताबिक इस मंसूबे से रेहड़ी बानों को बाइज़्ज़त रोजगार के लिए बेहतरीन मौका फराहम किया गया है, जबकि रोजगार के लिए मुनासिब सहूलियात मिलने पर रेहड़ी बान भी इस मंसूबे पर खुश हैं। शेखुपुरा में जुराइम की रोकथाम के लिए पेट्रोलिंग पुलिस के अफसरान ड्यूटी पर हाई अलर्ट हैं। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की फ़ज़ा को कायम रखने के लिए पेट्रोलिंग की जा रही है और लोड और हेलमेट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। इसी हवाले से मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शहराज सिंधु। जी शहराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जहां तमाम अदारे अपनी ड्यूटी पर जो है वो तैनात है, वहीं पेट्रोलिंग पुलिस के जवान भी जो है वो जराइम की जो है वो शरह को कम करने के लिए जो है वो रोड्स पर जो है वो अपनी ड्यूटी पर जो है वो तैनात दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ASI फजल हुसैन साहब। इनसे जानते हैं कि इनकी यहाँ पर क्या ड्यूटी है और अब तक कितना उन्होंने जराइम जो है कंट्रोल किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि रोड पे आप जो है हाईवे पे ड्यूटी आपकी, कितना जराइम कंट्रोल हुआ और क्या ड्यूटी आपकी यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम जी। सर मेरा अपना पंजाब हाईवे पेट्रोल से ताल्लुक़ है और हमारे अफसरान बाला DSP साहब शेखुपुरा, RO साहब लाहौर रीजन और DIG साहब पंजाब पेट्रोलिंग, इनके हुक्म से हम खासी जो मेहनत कर रहे हैं। इनके अपना हेलमेट के चलान, ओवरलोडिंग, नाबालिग, जिनकी वजह से एक्सीडेंट की शरह में इजाफा होता है, उसको कंट्रोल करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में इनसे जो छोटी सी पनिशमेंट दी जाती है, हेलमेट का चलान है, वो 2000 कम करते हैं, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और लोगों को काफ़ी आगाही हो रही है कि वो हेलमेट लेकर अपना जो है ना सफ़र करते हैं। अच्छा, ये आपके जो है नाका लगाने से जराइम में भी काफ़ी कमी आती है, जराइम पेशा लोगों को भी जो है वो हदायत जारी होती है? जी जी, इंशाल्लाह जो भी जब नाका लगाया जाता है तो हर गाड़ी बाइक को चेक किया जाता है बाकायदा। अगर किसी के पास कोई चीज़ जैसे बरामद हो जाती, पिस्टल वगैरह या शराब, उस पर हम FIR देते हैं, कार्रवाई करते हैं मुकम्मल, ठीक है। और जो ओवरलोडिंग आजकल जो रक्षा जहाज हैं, जो अपना ये लकड़ी के रक्शे बनाए हैं, उनके ख़िलाफ़ हम खासी अपना मुहिम चलाई हुई है, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर रहे हैं, उन पर FIRs दे रहे हैं और हेलमेट के ख़िलाफ़ जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा मौसर कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि आला हुकाम के हुक्म पर जो है वो हेलमेट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और जो ओवरलोडिंग जो रक्शे हैं उनके खिलाफ जो FIR का अंदराज भी करवाया जा रहा है। जी। गवर्नर पंजाब और चांसलर सरदार सलीम हैदर खान की जानिब से इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में मार्का हक जश्न आज़ादी और यूनिवर्सिटी के 100 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात का एहतमाम किया गया। गवर्नर का कहना था कि 1975 में कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जामा इस्लामिया को मुकम्मल चार्टर्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, जो मेरे शहीद कायद की सोहनी धरती से मोहब्बत और इल्म दोस्ती का शाहकार है। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा कि पाकिस्तान अल्लाह का इनाम है और उसकी मंजिल और मकाम बहुत ऊंचा है और हाल ही में इंडिया ने घमंड का मुजाहिरा किया। सारी कौम ने मुत्तहिद होकर 5 गुना बड़े और ताकतवर मुल्क को शिकस्त फाश दी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मौजूदा दौर तश्कील, इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी और डिजिटल तरक्की का दौर है। हमारे नौजवानों को माहौलियाती तब्दीली, तेजी से बढ़ती हुई आबादी और फूड सिक्योरिटी जैसे चैलेंजेस का सामना है, जिसे पढ़ी लिखी नस्ल ने हल करना है। साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ हमें अपने अजीम फिक्री और सकाफती विरसे की हिफाजत करनी है। ख्वाजा गुलाम फरीद की अखुवत और मोहब्बत की तालीमात हमारे लिए मशाल राह हैं। गवर्नर पंजाब ने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान की क़यादत में यूनिवर्सिटी की बेहतरी और तरक्की के लिए काविशों को सराहा। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर मेहनती हैं और यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए बेहतरीन विजन रखते हैं। इस मौके पर अपने खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने कहा कि
सद साला तकरीबात के आगाज पर चांसलर और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की मौजूदगी असातिज़ा, तलबा, तालिबात, मुलाजमीन और इल्युमिनाई के लिए बाइज़ एजाज़ है। यूनिवर्सिटी में मयारी तालीम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि तदरीस और तहकीक आला मयार और कौमी तरक्की से हम आहंग हो। इस सिलसिले में हुकूमती इदारों का ताउन खुश आइंद है। गवर्नर पंजाब ने तकरीब में मिली नगमा पेश करने वाले तलबा तालिबात को नकद इनाम से नवाजा। गवर्नर पंजाब ने अपनी आमद के मौके पर मार्का हक और जश्न आज़ादी के सिलसिले में परचम कुशाई की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने बात करें कि असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सैयदा हुमैरा शाह की सरबराही में तहसील ऑफिस में दूसरे रोज भी रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द, इनकलात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल और दीगर रेवेन्यू मामलात के मसाइल के हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद सैयदा हुमैरा शाह का इस मौके पर कहना था कि खुली कचहरियों का इनेकाद हुकूमत का एहसन इकदाम है। खुली कचहरी में तमाम शुबों को एक छत तले जमा कर दिया गया है और आवाम की शिकायत का मौके पर अजाला किया गया है। इस मौके पर महकमा रेवेन्यू का मुकम्मल स्टाफ मौजूद था। चौलिस्तान और दस्तकारी का साथ सदियों पुराना है। चौलिस्तान में बसने वाली हुनरमंद खवातीन के हाथों से बनी रिली और परांदे और दीगर सजावटी अशिया भी इस खत्ते की सकाफत की आईनादार हैं। मजीद जानते हैं सादिकाबाद से मलिक तलहा अकमल की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद के चौलिस्तान की हुनरमंद खवातीन कम वसाइल के बावजूद कदीम चौलिस्तानी दस्तकारी के फन को आज भी जिंदा रखे हुए है। दीदा देव रंगों से मुज़य्यन हाथों से बने शाहकार बाहिम्मत खवातीन की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। अच्छा छबिया बने दे हूं, गिंदियां बने दे हूं, पक्के बने दे हूं ते साडा कारोबार यो है ते बड़ा ते वाला साडी मेहनत नहीं मिलदी वाला बने दे महंगे चीज़ां घेना दे मोती ते धागे थे सब कुछ साडे महंगा के घेना दे सार कदू ते वाला मेहनत को न मिली साडी। चौलिस्तान के रैगजारों के मकीन अपनी सकाफत के तर्जमान समझे जाते हैं। इनके हाथों से बनी रीली, परांदे, पंखे, छाबी से चौलिस्तानी सकाफत की झलक नजर आती है। रंग बिरंगे मोती, चमकीला तिला, खूबसूरत ऊनी धागों से बनी एशिया आज भी शहरी इलाकों में बेहद मकबूल है, मगर कम मुआवजा मिलने से खवातीन मुश्किलात का शिकार है। रोज बैठे हूँ, शार कनु परे बैठे हूँ ते सामान गेनम दे महंगा गोटे गेन की दे, मोती गेन की दे, शीशे गेन की दे, महंगा गेनम दे वाला 2-3 डी 4 डी लाग वेंदे परांदा बने दे वाला विकदे को नहीं विकदे 200 150 मेहनत नहीं मिलती। चौलिस्तानी दस्तकारी न सिर्फ सहरा के बासियों का जरिया माशा बल्कि ऐसे पसमानदा इलाकों में दस्तकारी सेंटर का क़याम और यहाँ के हैंडमेड वर्क को मुतारिफ करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरा टीम के साथ मलिक तलहा अकमल, चैनल 5 न्यूज़, सादिकाबाद। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिए। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर देंगे खानका डोगरा में जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से अहम इजलास। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी तनवीर बलोच की जेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन सरदार कामरान डोगर, राना अकबर अली, जनरल सेक्रेटरी चौधरी शफीक अहमद समेत अंजुमन ताजरान और दीगर ने शिरकत की है। चीफ ऑफिसर तनवीर इकबाल बलोच ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस मरतबा पूरे मिली जोशो व जज्बे के तहत 14 अगस्त की तकरीब शानदार और पुरवकार अंदाज से मनाई जाएगी। इसमें तजावुज़ात के हवाले से साथ साथ हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा रेट लिस्ट से ज़्यादा फरोख्त करने वाले दुकानदारों के पर कार्रवाई की जाएगी, जिसके लिए पैराफोर्स के इकदाम की ब्रीफिंग भी दी गई। पौधा लगाना है। 1 अगस्त शुरू होते ही निजी वेलफेयर की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम का मकसद परचम लहराना है और पौधा लगाना है। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर से। जी उमर अकबर, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, आज 1 अगस्त हो गई है। 1 अगस्त को जो है मुहिम शजरकारी की जारी हो गया है। इनका मुहिम का आगाज़ इस तरह से हुआ है कि इस जो अगस्त को वो बाजा नहीं बजाना बल्कि पौधा लगाना है, पौधा लगा के पाकिस्तान को सब सबज बनाना है। मेरे साथ निजी वेलफेयर के मुबल्लिग मौजूद है जिन्होंने शजरकारी का मुहिम का आगाज़ शुरू किया और लातादाद जो है पौधे लगा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं। जी बताइएगा इसके हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी का डिपार्टमेंट FGRF जिसके तहत मुल्क भर में प्लांटेशन करते हैं, 1 अगस्त आज 1 अगस्त से प्लांटेशन का जो है वो आगाज़ कर दिया है। मुख्तलिफ इदारों में, महकमों में, दफातर में और रोड्स पर, कॉलेजेस में और जहाँ जहाँ में जो पॉइंट्स मिल रहे हैं बागात लगाने के वो भी लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। हमने नारा लगाया कि पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। और ये जश्न आज़ादी के मौका पर परचम भी लगाएं, पौधे भी लगाएं। और बिलखसूस नौजवानों को ये गुजारिश है कि बाजा नहीं, क्योंकि बाजा महंगा है, पौधा सस्ता है। बाजा शोर पैदा करता है, पौधा हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा करता है। तो हमने इस बार बाजे नहीं बल्कि पौधे खरीदने हैं और लगाने हैं और इनकी केयर करनी है और अपने वतन को सरसब्ज व शादाब बनाने में अपना अमली किरदार अदा करना है। जैसा कि आपने हजरत साहब की बात सुनी है, उनका यही कहना है कि नौजवानों के लिए खासकर पैगाम है जो बाजा 14 अगस्त को बजाते हैं, ताहम इन्होंने 1 अगस्त ये जो है मुहिम का आगाज़ कर दिया। इनका यही पैगाम है, अपने वतन को सरसब्ज बनाएं, पौधा लगाएं। जी जश्न आज़ादी के मौके पर गवर्नमेंट जमींदार स्कूल गुजरात में शजरकारी और इनामी तकसीम की एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें रुकन सूबाई असम्बली खालिद असगर और असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात बिलाल जुबैर, CEO एजुकेशन मोहम्मद यासीन खान, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर राशिद चट्टा, तनवीर बट, अली रजा और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मौजूद मेहमानों ने स्कूल के अहाते में पौधे लगाए और माहौलियाती बेहतरी के लिए शजरकारी की अहमियत पर जोर दिया। मुकर्रिरीन ने कहा कि आज़ादी की खुशी के साथ साथ माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी कौमी फरीज़ा है और दरख्त लगाना इसकी अमली शामिल है। पाकपतन में सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट की हिदायत पर खुसूसी अफराद में मुआविन आलात तकसीम करने की तकरीब बल्दिया हॉल में मुनक़िद की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा का कहना था कि खुसूसी अफराद की खुद मुख्तारी माशरती फलाह तरक्की की जमानत है। खुसूसी अफराद को बावक़ार और मसाफ़ी मवाक़ी की फराहमी हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है। तहत खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। अफराद की शमूलियत और फलाह रियासती जिम्मेदारी का हिस्सा है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सहूलियात की फराहमी सिर्फ फलाह नहीं समाजी इंसाफ का तकाजा है। खुसूसी अफराद को रियासत का फौल बाइज्जत और मसाफी शहरी बनाने के लिए इक़दाम जारी हैं। तकरीब में 49 व्हील चेयर्स, 6 वॉकिंग फ्रेम, 9 टॉयलेट चेयर्स समेत 109 आलात तकसीम किए गए। चिश्तिया में सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया। गली मोहल्लों में गंदे पानी की वजह से जौहर बन गए हैं। ताहम दूसरी जानिब म्यूनसिपल कमेटी की सफाई टीमें मुतहरिक नजर नहीं आती और निकासियाब के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाते हुए सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एकदम अवामी मुश्किलात के सामने काफ़ी साबित हो गई हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं चिश्तिया से हमारे नुमाइंदे कलीम अफजल चौधरी की इस रिपोर्ट में। मानसून की मूसलाधार बारिशों ने चिश्तिया शहर का सेवरेज निज़ाम एक्सपोज कर दिया। गली मोहल्लों में गंदे पानी के जोहर, बदबू और मच्छरों की बहतात ने शहरियों की ज़िंदगी अजाब बना दी। ख़ास तौर पर नशीबी इलाके बदतरीन सूरत हाल का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया की अदम तवज्जी से मसाइल में इजाफा हो रहा है, मगर दूसरी जानिब चिश्तिया म्यूनसिपल कमेटी की सफाई टीमें मुतहरक हैं और निकासी आग के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार ला रही हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है सबको कि मानसून की बारिशों का सिलसिला था और बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं प्रीवियस ईयर से, तो उस वजह से जो है ना लाइनें सिल्ट अप हो जाती हैं और जैसे ही बारिश ख़त्म हुई है हमने डिसिल्टिंग स्टार्ट करवा दी और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना वो मैक्सिमम हो गई है और अगले नेक्स्ट जो है ना 1-2 दिन के अंदर तमाम कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाएंगी और कोई दुश्वारी का सामना नहीं आएगा। चिश्तिया में हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए बल्दिया ने हंगामी बुनियादों पर इक़दाम शुरू कर दिए हैं। अगरचा बल्दिया का अमला मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरक है, लेकिन बारिश के बाद सामने आने वाली ये सूरत हाल इस बात का तकाजा करती है कि सेवरेज निज़ाम की मुकम्मल अज़सर मनसूबाबंदी की जाए ताकि आइंदा शहरियों को इन मसाइल का सामना ना हो। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी, 5 न्यूज़ चिश्तिया। गवर्नमेंट गुरु नानक ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन ननकाना साहब में यौम आज़ादी की तक़रीबात का आगाज़ हो गया है। तकरीब में परचम कुशाई, चरागां, कौमी तराना और हुब्बुल वतनी का इजहार किया गया।
इस मौके पर इदारे को खूबसूरती से सजाया गया, चिरागा किया गया और हर तरफ कौमी झंडियाँ लहरा दी गईं। तकरीब में प्रिंसिपल, प्रोफेसर्स और तलबात ने कौमी तराना पढ़कर वतन से अपनी मोहब्बत और वफादारी का इजहार किया है। इस मौके पर मुकर्रिरीन का कहना था कि 14 अगस्त 1947 वो रोशन दिन था जब हमारे आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियों के बाद एक आज़ाद रियासत हासिल की, जहां हम आज़ादी की फ़ज़ा में सांस ले सकते हैं। दुश्मन हमेशा से इस मुल्क को मिटाने के दर पे रहे हैं, लेकिन 1965 और 1971 और हालिया 2025 के हालात ने दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि अर्ज़ पाकिस्तान की तरफ कोई बुरी निगाह नहीं डाल सकता। और इसके साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।